वासुतं देवं कंसचारूमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आज हम 28 से 30 तक श्लोक करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने किए थे श्लोक, तो हमने देखा था कि एक वाइज पर्सन कैसे एक्ट करता है और एक इग्नोरेंट पर्सन कैसे एक्ट करता है। एक वाइज पर्सन विदाउट ईगो, विदाउट अटैचमेंट और विदाउट सेल्फिशनेस एक्ट करता है। तो अब ये इस श्लोक में वर्स 28 में भगवान बता रहे हैं कि ये विदाउट अटैचमेंट कैसे काम कर सकते हैं हम। ठीक है, ये तो बोल दिया कि विदाउट अटैचमेंट काम करो, पर विदाउट अटैचमेंट कोई कैसे बने। तो वो बोलते हैं कि जब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, कि जब हम ये समझ लेंगे कि जो कुछ भी हम एक्शंस ले रहे हैं वो एक्चुअली हमारा माइंड ले रहा है, we try to differentiate that our mind is doing all the actions, we are not doing actions, that love and hatred belongs to the mind, success and failure belong to the mind, and likes and dislikes belong to the mind. So everything belongs to the mind, but it doesn't belong to us. So we are not doing, it is the mind which is doing. So automatically when somebody else is doing or something else is doing, the attachment becomes less. When you say kyunki the third person is doing, then your attachment to that will become less. So this is how Bhagwan says, this is how you can make your attachment less. In this shlok, Bhagwan calls Arjun as Mahabaho, means mighty armed. Mighty armed, he's saying, because he's saying, you are armed against deflating these arrows of attachment. You are ready now that जो ये अटैचमेंट के एरोस सब तरफ से तुम्हें अटैक कर रहे हैं, you will be able to dodge them and you will be able to keep your peace. So that way you are mighty armed. And another word in this shlok Bhagwan is using is called as tatvit. Tatvavit. Tattvavit means one who knows the reality, one who knows the self or the God within. He said, कैसे हम realize करेंगे ये God within और कैसे हम ये बनेंगे mighty armed. भगवान says कि जब हम realize करेंगे ये जो हमारा body, mind, intellect ये interact कर रहा है objects से, वो किस बेसिस पे इंटरैक्ट कर रहा है, वो 3 गुणास के बेसिस पे इंटरैक्ट कर रहा है, सत्व, रजस और तमस. मतलब आप में भी सत्व है, रजस है, तमस है, मुझ में भी सत्व, रजस, तमस है. तो आपके गुणास और मेरे गुणास ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. सो दीज क्वालिटीज आर इंटरैक्टिंग विद, my qualities are interacting with your qualities, right? The gunas are interacting with the gunas. Clear? If you have questions, we'll take it at the end. Okay. So verse 28 talks about the gunas interacting with the gunas, your gunas interacting with my gunas. Now verse number 29 में भगवान बोलते हैं कि ये जो BMI है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट है, ये हमारे एक्शन करने के इक्विपमेंट्स हैं. इनके थ्रू हम वर्ल्ड में एक्शन करते हैं, राइट? So a person who identifies with the body, a person usually what it does is, some people identify with the body, some people identify with the mind, some people identify with the intellect. How body से identify करने वाले बोलते हैं usually, okay, I am fat, or I am beautiful, I am looking like this, I look very nice. So there, or I need to exercise to make my body look better. So they're identifying, their entire concentration is towards their body. So they're identifying with the body. Now, a person who identifies with the mind will say, I'm happy, I'm sad, I'm stressed, I am feeling low. All these emotions, whenever we talk about our emotions, we are identifying with the mind.
And when we identify with our creativity, when we say I am intelligent, I am creative, then we are interacting through our intellect, right? So these are our equipments of action in the world outside: body, mind and intellect. ये तो हो गया आपके इक्विपमेंट है, बट इन इक्विपमेंट्स के साथ हम एक्शन करते हैं. मतलब आप वॉकिंग करते हो तो बॉडी यूज कर रहे हो, राइट? आप बोल रहे हो तो माउथ यूज कर रहे हो, दैट इज अगेन यूजिंग द बॉडी. आप सोच रहे हो तो अपना माइंड यूज कर रहे हो, राइट? सो इक्विपमेंट्स हैं एक, और एक है एक्शंस थ्रू द इक्विपमेंट्स. जैसे अगर आपकी मशीनरी होती है फैक्ट्री में, तो एक तो मशीनरी हो गई, और एक है मशीन को चलाना. मशीन जब एक्शन करती है, तो सिमिलरली हमारे बॉडी में BMI जो है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, ये इक्विपमेंट्स है, इनके थ्रू हम एक्शंस करते हैं. तो दो डिफरेंट चीजें हो गई, एक इक्विपमेंट हो गया और एक एक्शन थ्रू द इक्विपमेंट हो गया. करेक्ट? सो जो हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं जब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से, तो हम लोग करता हो जाते हैं. दैट वी आर सेइंग दैट आई एम डूइंग, because I'm identifying with the body. I am walking, I am sleeping, I am eating. So वो कर्ता का भाव आ जाता है, वो डूअरशिप का भाव आ जाता है. तो when we identify with the equipment or the action of the equipment, so तब वो आता है वो कर्ता का भाव. करेक्ट? नाउ ये कर्ता का भाव कैसे हटाने का, वो श्लोक नंबर 30 में भगवान बोलते हैं. ठीक है, पहले श्लोक में 28 में भगवान ने बोला अटैचमेंट कैसे हटाना है. फिर 29 में उन्होंने समझाया कि डूअरशिप कैसे आती है, जो हम करते हैं उससे हमें डूअरशिप आती है, बिकॉज आई, अहंकार, ईगो आता है, राइट? So then Bhagwan says in श्लोक number 30, how do we remove this doership? How do we remove this doership? By renouncing all action in the Lord. He said, how can we renounce all actions in the Lord? By following two ways. He said, without hope and without ego. Why without hope? Without, usually you will hear people saying that you should have hope. Hope रखनी चाहिए, आगे मेरा अच्छा होगा, अपनी hope बांध के रखो. But Bhagwan is saying, when you have hope, you will be constantly anxious about your future. अब फ्यूचर के बारे में ना, होप किसके लिए होती है? प्रेजेंट के लिए तो नहीं होती ना. होप हमेशा फ्यूचर के लिए होती है. यू कॉन्स्टेंटली एंशियस अबाउट द फ्यूचर जब होप रखते हो. तो एक तो हो गया फ्यूचर. और अहंकार कहाँ से आता है, ईगो कहाँ से आता है? बिकॉज वो पास्ट की वजह से आता है. पास्ट की वजह से कैसे आता है? अगर आपने कोई चीजें एक्वायर की हैं, या कोई मटेरियल पोजीशन एक्वायर किया है, कोई पोजीशन हासिल की है, उससे आपको ईगो आएगा, अहंकार आएगा, राइट? सो ईगो कम्स फ्रॉम द पास्ट एंड होप इज फॉर द फ्यूचर. तो भगवान ने से ना तो आपको पास्ट को देखना है, ना आपको फ्यूचर का देखना है, आपको अपने प्रेजेंट में रहना है. प्रेजेंट में रहना है. कैसे रहेंगे प्रेजेंट में? कीप योर हेड वेयर योर हैंड्स आर. मतलब जो आप काम करें, आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान उसी काम में होना चाहिए. देन यू आर नाइदर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, नॉट वरीड अबाउट द पास्ट, यू आर इन द प्रेजेंट, राइट? सो दिस इज वर्स नंबर 30. अब ये इन तीनों वर्सेस को मिला के हम लोग ये सीखते हैं, उसका समरी ये है कि सक्सेस की क्या परिभाषा है, क्या चीज करने से हमें सक्सेस मिलेगा. तो ये तीनों श्लोक में से हमें मिलता है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. हमने लास्ट टाइम जब सेशन किया था उसमें हमने देखा था लीडरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक अच्छे लीडर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, राइट? कि उसमें पाथ क्लैरिटी होती है, गोल क्लैरिटी होती है, राइट? फ्रेंडलीनेस होती है, राइट? एम्पावर करता है वो लोगों को, राइट? ये उस हमने लीडरशिप की क्वालिटीज देखी थी लास्ट टाइम. अब इसमें से 3 श्लोक में से जो हमारा डेरिवेशन है, जो हमने डिराइव किया है, वो है
सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस की ये परिभाषा है, या ये दो चीजें करने से हमें सक्सेस मिलेगा। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन। व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का लॉ है कि हमारे 3 तरह से एनर्जी ड्रेन होती है। वो कौन से 3 चैनल्स हैं एनर्जी ड्रेन होने के? रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट, एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर एंड एजिटेशन इन द प्रेजेंट, राइट? तो अगर हम इन तीनों होल्स को प्लग इन कर देंगे और एक स्ट्रॉन्ग स्टडी फोकस्ड माइंड से अपना काम करेंगे, वर्किंग विद वेयर कीपिंग माय हेड वेयर माय हैंड्स आर, देन वी आर फॉलोइंग दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन। दूसरा है सीक्रेट ऑफ डेडिकेशन। मीन्स जब हम किसी को अपने अपने आप से किसी चीज को अपने आप को अर्पण कर देते हैं, या अपना काम किसी और हायर चीज को डेडिकेट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कर्ता भाव खत्म हो जाता है, राइट? जैसे कुछ लोग अपने, जैसे हमारे सोल्जर्स हैं, आर्मी के सोल्जर्स, उन्होंने अपनी लाइफ नेशन को डेडिकेट कर दी है, राइट? तो वो ही सक्सेस है ना इन इटसेल्फ, राइट? उनके लिए वही सक्सेस है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने नेशन को डेडिकेट कर दी। तो हम अपने लाइफ किस चीज को डेडिकेट कर रहे हैं? इसके लिए एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है भगत सिंह की। भगत सिंह को बोला गया, वो सिख थे, राइट? तो उनको बोला गया कि आप को अपने बाल और दाढ़ी और ये सब काटनी पड़ेगी। तो वो उन्होंने बोला कि मैं अपना सर कटाने को तैयार हूं अपने देश के लिए, तो ये दाढ़ी और बाल क्या चीज है, राइट? दिस इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन फॉर अ हायर पर्पस। यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ द लोअर, करेक्ट? तो ये है लॉज ऑफ सक्सेस। एक और है, थर्ड लॉ ऑफ सक्सेस। जैसे एक स्पोर्ट्समैन है, वो हमेशा स्पोर्ट खेलना एंजॉय करता है। वो उसकी जब वो स्पोर्ट खेल रहा होता है, उसका ध्यान स्कोरबोर्ड पे नहीं होता है, उसका ध्यान सिर्फ खेलने में होता है। जैसे अब क्रिकेट खेल रहा है तो उसका ध्यान सिर्फ अगली बॉल जो उसके पास आ रही है उस पे होगा। अगर उसका ध्यान स्कोरबोर्ड पे होगा तो क्या वो अच्छा खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। सो द फोकस is very important. Enjoy the sport, enjoy your actions, whatever you're doing, and do not worry about the results, right? At that present moment, whatever you can do best from your side, do that, and rest will automatically be taken care of. So ये 3 हमारे थे सक्सेस पाने के वेज। अगर ये 3 चीज हम फॉलो करेंगे तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी काम हो, राइट? तो अभी मैं एंड करती हूँ एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके। ओम पूर्णमद पूर्णइदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत।